کبھی بھی پاکستان کی خیر کی خبر نہیں آتی اڈیالہ سے. جب بھی وہاں گفتگو ہوتی ہے پاکستان کے خلاف ہی ہوتی ہے. فیصلہ کیا ہے کہ نہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کو ہم چلنے دیں گے، نہ جو ہے سینٹ کا اجلاس چلنے دیں گے. حالات اگر خراب مزید ہوئے تو پھر یہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کو کنٹرول کر پائیں، اور نہ ہمارے بس میں. پارلیمنٹ کے اندر شور شرابہ کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ نے کسی کو اجازت نہیں دینی. اور کس سے ملاقات مانگ رہے ہیں؟ جو سزا یافتہ مجرم ہے. ملاقات کی اجازت صرف اور صرف جو عدالت حکم دے اس کے تحت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انہیں عدالت کا رستہ اختیار کرنا پڑے. ویلکم ٹو نیوز ٹائم. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. تحریک انصاف نے منگل کو دوبارہ اڈیالہ جیل جانے کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ شرط بھی رکھی ہے کہ اگر حکومت نے بانی چیئرمین سے ملاقات نہ ہونے دی تو احتجاج کیا جائے گا. حکومت کی اگر بات کریں تو حکومت کی طرف سے یہ اشارے ضرور دیے جا رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ بانی چیئرمین سے ملاقات کے بعد اشتعال انگیزی نہ پھیلائے تو ملاقات کی اجازت مل سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کو احتجاج کے بجائے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بانی چیئرمین کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے حکومت کو جو گارنٹیز درکار ہیں، حکومت کے ساتھ جو معاملات انہوں نے طے کرنے ہیں ان کو طے کیا جائے، تاکہ حکومت کو بھی یہ گارنٹی مل جائے کہ اشتعال انگیزی نہیں ہوگی، اشتعال انگیزی نہیں پھیلائی جائے گی. دوسری طرف حکومت کی اگر بات کریں اور حکومت سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ جو وہ منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور بالخصوص وہ پروپیگنڈا جو دشمن میڈیا بانی چیئرمین کی صحت کو لے کر پھیلا رہا ہے، اس کا جس کا مقصد جو نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ افراتفری کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے، اس کا جلد سے جلد جو ہے وہ سدباب کیا جانا چاہیے. بانی سے ان کی فیملی کو ملوایا جائے. اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو کم از کم لوکل اور جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں ان کی ملاقات کروائی جائے، اور اگر وہ بھی پاسبل نہیں ہے تو کوئی ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کروایا جائے جس سے اس پروپیگنڈا کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جا سکے. کس طرح جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں گی، دونوں سائڈوں کو کون سے جو ہیں وہ سی بی ایمز لینے پڑیں گے جس سے ٹیمپریچرز کچھ نیچے جائیں، اس پر آج ہم بات کریں گے. احمد اویس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے، اور پیپلز پارٹی سے ہمیں قادر خان مندوخیل صاحب جوائن کر رہے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ. گفتگو کا آغاز اگر حکومت سے کریں تو دانیال صاحب، آپ کی جو اس وقت جو ریزرویشنز ہیں وہ اپنی جگہ ویزا ویز ملاقات سے کہ کوئی پیغام اس طرح دیا جائے گا جس سے ملک میں اشتعال انگیزی جو ہے وہ پھیل سکتی ہے، دیٹ اسائڈ وہ اپنی جگہ. اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ فورن ٹیمز بھی آئی ہوئی ہیں، بڑا سینسٹیو ایک ٹائم ہے، ویسے بھی دہشت گردی کی ایک لہر ہے. سو انڈرسٹینڈیبل کہ آپ کی جو ہے وہ چیزیں آپ کس پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو یہ پروپیگنڈا مشینز ہیں جو آئے دن جو ہے یہ منفی پروپیگنڈا کر کے ہمارے ملک میں صرف جو ہے وہ افراتفری پھیلانا چاہتی ہیں، کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان کا جو ہے وہ سدباب کرنے کے لیے آپ کو کم از کم یہ ہے کہ فیملی کی ملاقات اگر نہیں کروا سکتے کم از کم دور سے خان صاحب کو دکھا تو دیں کہ وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ صحت یاب ہیں، وہ ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ نہیں کر سکتے تو جرنلسٹ کو ملوا دیں، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی ایک ویڈیو پیغام ہی جاری کروا دیں کہ جس سے جو یہ انڈین اور افغان میڈیا دیٹس اسپیوئنگ وینم، کم از کم اس سے تو جان چھوٹ جائے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار ہیونگ می آن دی شو. ڈاکٹر صاحب یہ جو کر رہے ہیں دس از نتھنگ نیو. یہ ملک میں پہلے بھی یہ بڑی کلیئر بات کرتے رہے کہ عمران خان ان کی جماعت کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان ہے تو یہ ملک ہے، عمران خان ہے تو پاکستان ہے، اور عمران خان ہے تو پھر جمہوریت ہے. اور اگر عمران خان نہیں ہے تو سسٹم بھی ریپ اپ ہو جائے، ملک بھی تباہ ہو جائے، دیکھو جو ہونا ہو، ان کے اس کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا. یہ اپیل تو کر رہے ہیں انڈیا کی میڈیا سے آج اپنی بہنیں اپنی انٹرویو دے کر، لیکن کس سے اپیل کر رہے ہیں؟ یہ اس بندے سے اپیل کر رہے ہیں جو گجرات میسیکر مسلمانوں کے سر اتارنے کے لیے ہی از ریسپانسبل. یہ اس بندے کی جماعت سے یہ کا پلیڈ کر رہے ہیں جو جموں میسیکر جہاں 2 لاکھ کے لگ بھگ مسلمان مارے گئے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی جماعت نے وہاں یہ RSS نے یہ تمام چیزیں کی. تو ان کی سیاست اور ان کی مفاد کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، کسی چیز کوئی چیز ویلیو نہیں رکھتی، اور چاہے جو مرضی ہو جائے یہ اسی طرح کرنی ہے. پر جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کی دس از نتھنگ نیو.
व्हाट इज हैपनिंग टू इमरान खान कि अल्ताफ हुसैन का जब पूरा बयानिया था तब इमरान खान सपोर्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ वो इंगेजमेंट करा रहे थे, इदारों के खिलाफ बात करता था, मुल्क को बंद करने की बात करता था और पूरे मुल्क को हॉस्टेज बनाने की बात करता था। दे आर नो डिफरेंट। बट दानिश साहब, आई बेग टू डिफर। बेशक उनकी बहनें जो हैं वो इंडियन मीडिया आउटलेट्स को जो है वो बयानात दे रही हैं, लेकिन उसमें उन्होंने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि जी हमारा भाई जो है वो खुदा न खास्ता जिस किस्म की चहमगोइयाँ हो रही हैं, रूमर मिल्स जिस किस्म की चल रही हैं कि जी ही इज़ बिन हार्म्ड या खुदा न खास्ता वो इस दुनिया में नहीं रहे, इस तरह की बातें नहीं करी, बट कि कैटेगोरिकली वो ये कह रही हैं कि आई थिंक ही शुड बी फिजिकली ऑल राइट। इस तरह की बात वो कर रही हैं। दोनों बहनें, उन्होंने कहीं ये बात नहीं की। हाँ, जहाँ तक इंडियन मीडिया को अगर आप ये कहते हैं कि इन द बैकड्रॉप ऑफ ये मार्का हक और जिस किस्म का उनका तर्ज अमल है हमारे साथ, उसमें उनको इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, वो एक और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। बट इस पे अगर आप ये कहें कि उधर से हेल्प मांग रही हैं या उनकी जो रूमर मिल्स हैं उनको फीड कर रही हैं, दैट आई डोंट एग्री विद। डॉक्टर, यू हैव ऑल द राइट टू डिसएग्री विद मी, लेकिन जहां तक इनकी सियासत है, इनकी सियासत का तरीकाकार ही ये है, और ये आज से नहीं है, शुरू से है कि इदारों को, मुल्क को, सब उनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी उनको सबोटाज करना। यही इमरान खान थे जब आप स्टेट सीक्रेट्स जो थे ये अपनी बेगम को जो उनको बताते थे और आगे लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी। स्टेट सीक्रेट्स को इन्होंने अपने ओथ को वायलेट किया। ये इमरान खान की जमात है जो जब आर्मी चीफ, हम अपनी जंग जीते तो आर्मी चीफ अमेरिका में थे और विजिट के ऊपर, तो वहाँ शहजाद अकबर जैसे लोग उनके मुजस्मे जलवा रहे थे और एक ही कैंपेन, एक ही स्क्रीन के ऊपर BLA का बलूचिस्तान को अलग करने का पाकिस्तान से पैगाम चल रहा था और उसी स्क्रीन पे आपके आर्मी चीफ को और प्राइम मिनिस्टर को गद्दार कहा जा रहा था। तो दे आर स्पॉन्सर्ड, दे आर ऑल स्पॉन्सर्ड, और ये स्पॉन्सर में बाज़ दफा आप जो उसके जो पॉन्स होते हैं they don't even know। अच्छा दानियाल साहब, फिर यू नो ऑल द मोर रीजन, अगर आप कह रहे हैं कि ये पॉन्स हैं, दानियाल साहब कथा कलामी की माफी, इफ यू थिंक देयर पॉन्स, तो फिर तो आपको इनके मनफी प्रोपेगेंडा को जो है वो फौरन से जो है यू मस्ट डिफीट इट। आप कोई उनका वीडियो पैगाम जारी कर दें, कोई दूर से उनकी बहनों से जो है उनको दिखा दें कि जी बेशक आपने मुलाकात नहीं करानी बिकॉज ऑफ वट एवर रीजंस जो आपके खदशात हैं, लेकिन कम से कम दिखा दें ताकि दीज रूमर मिल्स गो टू रेस्ट बेसिकली। लेकिन वो अगर आप नहीं कर रहे तो फिर एक तरह से तो हम भी इस मुल्क में जो है या आप भी जो है वो इश्तियाल फैलाने में एक टूल का किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट फैनिंग जो यहाँ पे इश्तियाल अंगेजी है। देखिए नहीं, हम तो नहीं कर रहे, इसमें बड़ा कैटेगोरिकल है। जेल मैनुअल जो है वो खाली इमरान खान की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात नहीं करता, वो जेल में 4000 दूसरे बैठे हुए कैदी उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करता है। तो ये नहीं हो सकता कि इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से आप और पूरे जेल की सेफ्टी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करें। ये जत्थे लेके आ जाए, ये ब्लैकमेल। तो ये मुलाकातें इसलिए नहीं हो रही बिकॉज वो जेल उनकी जो बाकी कैदी हैं उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जा रहा है, इज दैट द रीजन? नहीं डॉक्टर साहब, मल्टीपल रीजन है। एज आई टोल्ड अर्लियर, वन ऑफ द रीजन इज कि जिस तरह वफाक, ये जिस तरह मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, जिस तरह मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, जिस तरह ये so that's why I'm saying ना कि बेशक मुलाकात ना कराएं, दूर से जो है वो कम से कम दिखा दें ताकि these rumor mills come to a rest। But having said that, मैं जरा मंदो खेल साहब को गुफ्तगू में शामिल करूँ। जी 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 डॉक्टर साहब, इन्होंने हमेशा मुल्क को हॉस्टेज बनाकर अपनी चीजें कराई। ये मुल्क हॉस्टेज बनना बंद हो गया है। गवर्नमेंट और इदारे इनके हॉस्टेज नहीं बनेंगे। ये PTV पे हमला करें हॉस्टेज बनाकर, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट के ऊपर हमला करें, ये जहां भी करें, वो बिल्कुल टोटली अनएक्सेप्टेबल है। बट हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ। कुछ ना कुछ आपकी तरफ से इन जो ये प्रोपेगेंडा मशीन है उनको चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ तो जारी करना चाहिए। मंदोखेल साहब की तरफ चलती हूँ। मंदोखेल साहब, मैं इंडियन मीडिया देख रही थी और उस पर एक एंकर ने कोई 3-4 मिनट का अपना इंट्रो दिया जिसमें उसने ये कहा कि जी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था वही जो है वो इमरान खान के साथ होने जा रहा है, वही अडियाला जेल है। सारी उसने जो है ना वो एक पूरा जो नैरेटिव बिल्डिंग की कि जी वही इसी तरह होने जा रहा है, उनको जो है वो मारने की कोशिश हो रही है, मार दिया गया है, ये इंसिन्यूएट किया जा रहा था। आप हुकूमत के एलाइड पार्टी हैं,
आप क्या समझते हैं एक ऐसे माहौल में, जो कि ऑप्शंस हम बात कर रहे हैं कि बेशक चलें, अगर फैमिली को नहीं मिलवाना, फ्रॉम अ डिस्टेंस कम से कम दिखा दें कि उनका भाई जो है वो ठीक है, वो सेहतयाब है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, या कोई वीडियो पैगाम या इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की कम से कम जो है वो उनका विजिट करा दें, ताकि ये जो इस वक्त मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है कम से कम इसका तो मुंह बंद किया जा सके। किस तरह देखते हैं आप इसको? डॉक्टर मारिया, आप हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान से क्या तवक्को रख सकती है कि वो आपके लिए कोई अच्छा सोचेगा? जुल्फकार अली भुट्टो का केस इमरान खान से मिलाना ये भी बदनीयती है। उस अजीम शख्स जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, उस अजीम शख्स जो कि हमारी इन अदालतों ने झूठे मुकदमे में उनसे हमें अलग कर दिए और इनकी माथे पे दाग आज तक लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, वो धो नहीं सके। आप छोड़िए ना जुल्फकार अली भुट्टो और इमरान खान की क्या मुआवजा। बाकी ये कि मुझे बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आपकी बार बार सवाल के बावजूद दानियाल साहब आपकी सवाल का जवाब नहीं दे सके। और यही मैं कल भी कहा मुख्तलिफ चैनल में, उससे पहले भी कहा है कि बाबा किसी को ना मिलाओ, डॉक्टर मारिया को ही मिला दे, किसी और को मिला दे, सरकारी चैनल के किसी अफसर को मिला दे, मुस्लिम लीग नून वाले को मिला दे, दानियाल चौधरी को मिला दे, वो सेल्फी खींचने इमरान खान साहब के साथ किए लो, तो इसमें क्या सर कुछ ना करें, दूर से बहनों को दिखा दें, दूर से बहनों को दिखा दें, ना मिलवाएं, दिखा दें। मैं तो कहता हूं कि बड़ा आसान हाल है उसका, बड़ा आसान हाल है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी जवाब इधर उधर क्यों कर रहे हैं। और खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, कभी मैं सियासी रहनुमा के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ कि अगर वो कोई तबीयी मौत या कोई और हादसा हुआ है तो भी आप वो जेल में तो नहीं रख सकते हो, आप छुपा तो नहीं सकते हो, आप आवाम के सामने चीजें है। लेकिन इन सारी चीजों का तो एक ही हाल है कि कल ही दानियाल चौधरी साहब चले जाए, उनके साथ सेल्फी खींच ले या वही वीडियो फोन के जरिए बता दी मीडिया को या बहनों को जो आपने बात की है। तो इसमें इतनी सस्पेंस, मुझे लग रहा है हुकूमत को भी मजा आ रहा है, सस्पेंस में हुकूमत को भी खेलने में गालबन मजा आ रहा है। हुकूमत भी चाहते हैं कि चलो सही ये सारे टॉक शो इसी पे चलता रहे, बाकी हम जो कर रहे हैं वो तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिए। हम आवाम के लिए चाहे चीनी 220 रुपए किलो, चाहे और कुछ सूरत हो, बेरोजगारी के आलम हो, बच्चों को तालीम से दूर रखो, दुनिया का पहले नंबर पे पाकिस्तान है, तो इन सारी चीजों पे डिस्कस ही ना हो। हम और आप और अहमद ओवैस साहब इन्हीं की बातों के ऊपर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत यही चाह रहे, बाकी तो मुझे कोई वजह नजर नहीं आ रही। अच्छा अहमद ओवैस साहब, मैं इस वक्त जब प्रोग्राम स्टार्ट किया तो मैंने कहा हुकूमत की रिजर्वेशंस हैं, और रिजर्वेशंस वो ये हैं कि अगर इस किस्म का कोई ऐलान होता है, मुलाकात करवाई जाती है और बाहर निकल के पार्टी मेंबर्स या बहनें कोई इस तरह का ऐलान करती हैं कि जी कुछ स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जो है वो कोई उसका ऐलान होता है, तो इस वक्त सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है वीज़ा-वी जो दहशतगर्दी के हालात हैं, जो हमारी इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन है, फिर ये कि गैर मुल्की टीम्स आई हुई हैं, बड़ी मुश्किल से जो है वो उनको रोका गया, बड़ी मुश्किल से जो है वो क्रिकेट की वापसी हुई। और माजरत के साथ आपका पास्ट इस तरह का है, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, उस वक्त भी आप लोग एहतजाज कर रहे थे, इससे पहले चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विजिट जो है वो आपकी वजह से जो है वो डिले हो गया क्योंकि एहतजाज चल रहा था। हैविंग सेड दैट, अगर आपसे कोई ये गारंटी मांगी जाती है कि आप इस तरह की जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी नहीं करेंगे या कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, जो कि इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ 2-3 दिनों से हुकूमती जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से इस तरह के इशारे आ रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई आप गारंटी दें तो शायद जो है वो ये मुलाकात पॉसिबल हो सके, या जिस दिन कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट को कोई इस तरह की अंडरटेकिंग अगर आपको देनी पड़े, आर यू विलिंग टू गिव दैट सर? देखिए बात यह है कि पहली बात तो यह है कि ये एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है और मुझे समझ नहीं आती इसमें क्या विजडम है। अभी दानियाल साहब ने भी जो गुफ्तगू की है, इनको पता होना चाहिए कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो यू हैव टू शो मोर मैग्नेनिमिटी। जो बंदा अपोजिशन में होता है वो मैग्नेनिमिटी नहीं दिखाता। कहते हैं कि डिफाइंस इन डिफीट एंड मैग्नेनिमिटी इन विक्ट्री, ये चर्चिल ने कहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ये बुनियादी चीज़ है कि क्योंकि हुकूमत के पास रिसोर्सेज होती हैं, ताकत होती है, सारी स्टेट मशीनरी उसके कंट्रोल पे होती है। एक तो आप अपने गिरबान में झांक के देखें, सब चीज़ें आप इस काबिल नहीं थे कि हुकूमत में जाते। आपने एक ताकत के जोर के ऊपर आप झूठे तरीके के साथ और झूठे वोट्स लेके आपने पार्लियामेंट पे काबिज हो गए, चलो हो गए, बन गई हुकूमत।
اب آگے خدا کے لیے اگر اس طرح چلیں گے, یہ کنفرنٹیشن, ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, 2 صوبوں کے اندر اس قدر دہشت گردی کا بازار گرم ہے, تو آپ اس قسم کی باتیں اس موقع پہ دیکھیے. وہ جیل میں ہے, اگر ان کی بہنیں مل جائیں گی, اور بھی لوگ جا کے ملتے ہی تھے نا, اتنے عرصے سے مل رہے تھے, تو کوئی عمران, میں بھی کئی دفعہ ملا جا کے, تو وہاں پہ کیا ہو گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. وہاں پہ آپ جب ایک 5-6 آدمی اکٹھے جا کے ملیں گے, تو وہاں پہ آپ کچھ سیکرٹ بات کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہر بات جو ہے ایک ایک لفظ جو منہ سے نکلے گا, میرے ملاقاتی کے منہ سے نکلے گا یا عمران خان کے منہ سے نکلے گا, وہ سارا ریکارڈڈ ہے, ریکارڈ ہوگا. کوئی کر سکتا ہے ایسی حرکت, لیکن یہ بلا وجہ اس قسم کی بات کریٹ کر کے, یہ تو فرسٹ کریٹ کیا جا رہا ہے, ایک آپ ایجیٹیشن کی طرف دھکیل رہے ہیں آپ. اور ڈونٹ نو کہ کون ان کو یہ اس قسم کی سجیشن دے رہا ہے. اور ابھی دانیال صاحب نے بڑی عجیب سی بات کی, انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تو الطاف حسین کی بڑی سپورٹ کی تھی, اور وہ جو کچھ بیان دیتا تھا اس کی سپورٹ کر رہے تھے. میں آپ کو ایک چھوٹے سا واقعہ بتا دوں کہ الطاف حسین نے, آپ کو پتا ہے کہ وہ وہاں سے جب کوئی سپیچ کرتے تھے, بولتے تھے, وہ سپیچ ان کی, وہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینل جو ہیں وہ لازماً ان کے اوپر وہ دکھانی ہوتی تھی, ورنہ وہ تشدد پہ اتر آتے تھے. لہذا 1-2 گھنٹے کی سپیچ جو ہے, اور ایک بازار بدتمیزی اس سپیچ میں ہوتا تھا, سب سنتے تھے اس کو بیٹھ کے. یہ سپیچ کس نے بند کروائی تھی؟ میں نے ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ میں پٹیشن کو آرگو کیا, اور اس پٹیشن کی بنیاد کے اوپر یہ کورٹ نے یہ تمام سپیچز بند کی ان کی. اور بند کرنے کے بعد جب انہوں نے اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی کا آغاز کیا, اور پاکستان سے باہر انہوں نے کچھ ایسے کہا کہ میں, اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی تخلیق میں میرا ہاتھ نہیں ہے, میں اس کے بعد پیدا ہوا, میں اس قسم کی باتیں کی انہوں نے. تو میں نے ان کے پارٹی کے بین ہونے کی پٹیشن بھی دائر کی, اور میں پی ٹی آئی میں تھا. اور وہ پتہ ہے آپ کو, وہ پٹیشن جو ہے جو ان کے بین ہونے کی ہوئی تھی, وہ ریزسٹ کس نے کی تھی؟ وہ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے ریزسٹ کی تھی, انہوں نے بین نہیں ہونے دیا تھا. حالانکہ وہ اتنا مواد تھا, وہ میں نے ساری ویڈیوز اور وہ کورٹ کے اندر وہ ساری وہ جو ہے ڈسپلے کر کے دکھائی تھی. تو یہ باتیں پرانی باتیں, ان کو میں صرف ضمناً بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ باتیں جو ہیں ایسی نہیں کرنی چاہیے, ہم ان باتوں کے اصول کے اوپر رکھیں. جو غلطی ہو گئی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں. My apologies for interjecting, but my question remains, sir, کہ اگر آپ سے کوئی اس طرح کی انڈرٹیکنگ مانگی جاتی ہے, whether the court asks for it, یا پھر انڈرٹیکنگ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا, نہیں سوال کس بات کی انڈرٹیکنگ دے؟ اتنے عرصے سے ملاقاتیں ہوتی, وہاں کوئی بم لے کے بیٹھے ہوئے عمران خان, سر میں یہ بات نہیں کر رہی, تعویذ دے دیتے ہیں. سر میں یہ بات نہیں کر رہی. دیکھیے نا, دیکھیں سیکریسی کی تو بات ہی نہیں ہے, وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے, اس کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح کی کوئی کال کی جو ہے, وہ احتجاج کی کال کا جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے, جس سے اشتعال انگیزی پھیلتی ہے. آپ کے سامنے ہے ملک کی سیکیورٹی سچویشن, آج ایک موت پٹھا ہو اور وہاں پہ اس کا ایڈوانٹیج لے لے سوسائڈ بامر, تو آپ تو جو ہے وہ اداروں پہ ڈال دیں گے سارا کچھ. یا خدا نہ خواستہ ابھی جیسے یہ ٹیم والا مسئلہ ہے, تو اس میں اگر آپ کی احتجاج نکلتا اور ٹیم بھی وہاں سے گزر رہی ہوتی, خدا نہ خواستہ کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو جاتا, تو کلوسل ہمارے لیے جو ہے وہ ایک امبیرسمنٹ تھی انٹرنیشنل. میری بات سنیں جی, یہ تو اس طرف تو احتجاج کی طرف تو خود دھکیل رہے ہیں آپ. یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, احتجاج تو ہوتا ہی نہ. اگر جا کے آرام سے ملتے, اگر چیف منسٹر بھی ملنے آیا تھا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی, جا کے مل لیتا. اس کی بہنیں مل رہی ہیں, اس کے وہ دوسرے لوگ ملتے ہیں, وکلا ملتے ہیں, ہمیشہ ہوتا ہے ایسے. کوئی یہ تو ایسی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جو یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے. یہ تو خود ایک ایجیٹیشنل سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے. چلے ویسے تو رانا ثناءاللہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں, بٹ ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ میں آپ سے اگر پوچھتی ہوں کہ اگر آپ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہے کورٹ کے لیول پہ, اگر یہ بات ہوتی ہے, بیکاز یو آر گوئنگ ٹو اپروچ دی کورٹ آن منڈے, کورٹ کے لیول سے ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی انڈرٹیکنگ دیں کہ آپ احتجاج پہ یا اشتعال انگیزی پہ نہیں جائیں گے, تو ول یور پارٹی کنسیڈر دیٹ؟ اس کا کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے. یہ کیسی ریلیونس ہے؟ ملاقات اور چیز ہے, ایجیٹیشن جو ہے وہ تو پارٹی کا ایک پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. وہ اس کے اوپر دیکھیں, مجھ سے زیادہ جیل مینول آپ لوگ جانتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی پولیٹیکل میں جیل مینول میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. جی, یہ تو دیکھیں نا, جیل مینول میں
یہ چیزیں نہیں ہیں, وہ تو ڈسکریشن کو تو غلط استعمال کیا سر جا میں رہا وہی ہے. بات سر اگین ایگزیکٹلی وہی بات کر رہی ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ سمجھتے ہیں, لیکن اگر یہ بات اس سے جوڑی جا رہی ہے, مشروط کی جا رہی ہے کہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس نوعیت کی نہیں ہوگی, رائٹ اور رانگ, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اس وقت اگر آپ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے, بیکاز ماضی میں بھی آپ سے کہا گیا اچھا جی آپ کو احتجاج کی جو ہے وہ اجازت دی جائے گی پرووائڈیڈ اٹ اسٹیز پرامن اور آپ اس کی انڈر ٹیکنگ دیں, خیر وہ آپ نے دی, اس کے بعد اٹ ڈڈ ٹرن وائلنٹ, اس کا رسپانسبلٹی آپ لوگ نہیں لیتے, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اگر اس طرح کی کوئی گارنٹی مانگی جاتی ہے, انڈر ٹیکنگ مانگی جاتی ہے, آپ کہتے ہیں دیٹس انکالڈ فار اور ہم نہیں دیں گے. دیکھیے بات, دیکھیے حکومت بن گئی, اب حکومت بن کو کہ یہ کوئی اختیار تھا ان کو, جس انداز میں انہوں نے یہ 26 سے 27 ترمیم کر کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا, اس کا سٹرکچر بدل دیا, یہ سارا غیر آئینی ہے. آج یہ طاقت سے ہٹیں گے تو آپ دیکھیے گا کتنا خطرناک صورتحال پیدا ہوگی ملک کے اندر. یہ تو آپ اس قسم کی انڈر ٹیکنگ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, نہ دی جا سکتی ہے. ٹھیک, نہ دی جا سکتی ہے, ضرورت ہوتی ہے. دانیال صاحب, احمد اویس صاحب کی آپ نے بات سن لی, وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کی انڈر ٹیکنگ نہ ضرورت ہوتی ہے نہ دی جاتی ہے, وہ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. آپ لوگ لگ رہا ہے کہ انہی گارنٹیز کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی گارنٹی ملے گی تو پھر آپ جو ہے وہ ملاقات ہونے دیں گے. اور سب پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جو عمران خان کی بہن نے انڈیا کو اپنا انٹرویو دیا تھا, جن کی جماعت کی لائن ہے یا نہیں, اگر اس کو کلیئر کر دیں کہ جن کا جماعت کا نیریٹو ہے یہ اس کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں, پھر میں آگے جاؤں. سر بالخصوص کس, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین چینل کو جو ہے وہ انٹرویو ان کو نہیں دینا چاہیے تھا, یہ ان کی جماعت کی لائن ہے کہ نہیں ہے, از دیٹ واٹ یو آر آسکنگ؟ جی بالکل, پاکستان کے خلاف اور اداروں کے خلاف. پاکستان, اچھا احمد اویس صاحب اگر اس کو بتائیے کون سا انٹرویو پاکستان کے خلاف؟ تو کبھی انٹرویو انہوں نے نہیں دیا. پاکستان کے خلاف اگر اس طرف کی اگر بات کرتے ہیں تو نواز شریف اور شہباز شریف نے انڈیا سے 200-250 لوگ اپنی فیکٹریوں میں آ کے لگائے تھے, اور ان کو پروٹوکول کے ساتھ لایا جاتا تھا, اور انہی کے اندر ان کے انفلٹریشن جو ہے وہ جاسوسی کے بھی اندر آتے رہے, جنہوں نے آ کے یہاں قتل کیے ہیں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ خدا کے لیے ماضی کی طرف نہ جائیں, آگے سے ملک کو سنبھالنے کی بات کریں. میں نے پھر یہ طرح کی ان کی جماعت کا نیریٹو ہے, اس کو یہ اون کرتے ہیں. دیکھیے پھر ان کی جماعت میں اور صفوں میں خود اتحاد رہی ہے. ابھی ان کے 3 اسپوکس پرسن نے, اس میں آپ اتحاد کی طرف جاتے ہیں, کہاں سے بات شروع کر رہے ہیں, کہاں چلے گئے, یہ تو ان کا پرابلم ہے. اپنے آپ سے اس نیریٹو سے اپنے آپ کو لا الگ کیا اور کہا کہ یہ ان کا ذاتی فیل ہے, اس کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جماعت کا انٹرویوز اور ہم نے اس کو دینے ہوئے جماعتی لوگوں کو ہم نے ڈس ایگری کیا ہے. تو ان کی جن لوگوں کی اپنی صفوں میں کوئی اتحاد نہیں ہے, جن میں اپنے ان کو نہیں پتا کہ آپ نے صوبے کا برا حال کر دیا ہے, آپ پورے ملک کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے, آپ کا 13 سال سے جس ملک میں آپ, جس صوبے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بچے شہید ہو رہے ہیں, وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. آپ کا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جس دن سے اوتھ لیا ہے, اور اس سے پچھلے والے نے بھی, وہ عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر ایک ٹکے کی بات نہیں کی, کوئی کام نہیں کیا, اور سوائے جلاؤ گراؤ تفریق نفرت کے بیانیے کے. اس کا میں جواب دوں گا. کے علاوہ ان کے پاس دیر نتھنگ. یہ آج بھی ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ کھڑے رہیں اور یہ روکتے رہیں گے. یہ ملک آگے بڑھے گا, پاکستان بہتر ہوگا, اور پاکستان جس کو انٹرنیشنل آئسولیشن میں لے گئے تھے, پاکستان جس سے کوئی دنیا کا ملک بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, پاکستان جس کو لہو لہان کر دیا تھا, یہ اسی طرح روتے رہیں گے, یہ اور اسی طرح رہیں گے. لیکن یہ جو چاہتے ہیں, یہ جو ان کی انٹرنل پالیسی ہے, یہ اب تو کبھی ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کہ راک چینڈ سادی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں شہزاد اکبر سے تعلق نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ پراکسیز ود ان پراکسیز آپریٹ کرتے ہیں. ملک کو کمزور کرنا ان کا الٹیمیٹ ہدف ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا کو بیان دینے سے, مودی کو انوالو کرنے سے, انڈیا میڈیا کو انوالو کرنے سے. بٹ دانیال صاحب ٹھیک, چلیں یہ آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ, جو ہے آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ, بٹ یہ جو اس وقت پرسیپشن بلڈ ہو رہی ہے کہ آپ کو کوئی انڈر ٹیکنگ چاہیے, کوئی آپ کو گارنٹی چاہیے کہ کوئی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ احتجاج کی نہیں ہوگی, کوئی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اشتعال انگیزی پہ جو ہے وہ مبنی نہیں ہوگی, از دیٹ رائٹ؟ رانا ثناء اللہ صاحب تو اسی طرح بات کر رہے ہیں. یہ ایک اس کا مطلب آپ کا جو ہے آپ نے ایک کنڈیشنالٹی رکھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب گون آر دی ڈیز جب ان کی بلیک میلنگ سے حکومتیں جو ہیں گھٹنوں پر آتی تھی, یا ادارے گھٹنوں پہ آتے تھے, یہ اپنے مفاد کے لیے ملک کو سبوتاج کریں یا ملک کی سیفٹی اور سیکورٹی کو سبوتاج کریں. گون آر دی ڈیز یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا کہ ان کی وجہ سے
जो हमारे मुल्क में जो हमारी अफवाज लड़ रही है बॉर्डर्स पे, उनको उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को सबताज किया जाए। ये कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ऑपरेशंस पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, जो दहशतगर्दों के खिलाफ और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, वो इनकी स्टेटमेंट से सबताज हो या हुकूमत किसी तरह कमजोर हो। अगर इफ एनीथिंग शॉर्ट ऑफ इट, तो हम तो हमेशा फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। हम तो डे वन से कहते हैं कि बैठ के मुफाहमत से चीजों को आगे चलें, लेकर चले। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब इनकी मर्जी ना हो तो कहीं ये मुल्क भी गद्दार है, ये मुल्क को भी तोड़ो, इस मुल्क को भी आग लगाओ, ये आइन की धज्जियां उड़ाओ। बट दानियल साहब प्लीज क्लैरिफाई कि अगर सीएम से मुलाकात हो जाती है तो ये जो बॉर्डर्स की सिचुएशन है, जो सारा आपने भी जो आपने नैरेट किया है, ये किस तरह सैबोटाज होगा? आई मीन इफ यू कुड एक्सप्लेन दैट। डॉक्टर साहब, आपने इनके बयानात पहले नहीं देखे? आपने नहीं देखा कि आपके बच्चे जिन लोगों को, जिन जवानों ने अपने मुल्क के लिए जाने दी, शहादतें नोश की, अपना आज कुर्बान किया हमारे कल के लिए, ये क्या स्टेटमेंट देते रहे कि उनके मारने वालों के साथ हम सलीना और मैरियट में हाई टी के ऊपर बैठकर डायलॉग करें, मुफाहमत करें, उनको हम लेट गो करें, उनके साथ बैठकर चीजों को मुफाहमत से चलाएं। ओके सर, तो ये अब मुझे बेसिकली इस वक्त जो सिचुएशन यू वांट कि फ्लेक्सिबिलिटी आए, इनका जो मौकफ है, जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का ऑपरेशन के हवाले से जो मौकफ है, जिस तरह वो लोगों को बुला के जो नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वहां फ्लेक्सिबिलिटी आए, वहां पे दे शुड ओन दी ऑपरेशन। चलिए ये एक चीज मैं आपकी इसे समझी हूँ। मैं जरा मंदुखैर साहब की तरफ चलूँ, फिर वैसा वेलकम टू यू, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कम टू यू। मंदुखैर साहब, आपको मिडवे क्या लगता है? इस वक्त एक तरफ हुकूमत का लगता है कि हुकूमत जो है वो एज लेवरेजिंग इस मुलाकात को इस्तेमाल कर रही है, सब्जेक्ट टू जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है कि वो ऑन बोर्ड आए, ऑपरेशन को ओन करे, वहाँ पे उनका जो एक पर्सपेक्टिव है वो बदल जाए। ये एक लेवरेजिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। साथ ही साथ ये भी कि अंडरटेकिंग्स जो हैं वो दी जाएं कि इश्तियाल अंगेजी नहीं होगी इस सेंसिटिव माहौल में, सेंसिटिव सिक्योरिटी माहौल में। दूसरी तरफ आपने मौक़िफ़ सुन लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। व्हाट डू यू थिंक इज द मिड वे? क्या होना चाहिए? डॉक्टर मारी, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में इसी टाइप के एफिडेविट मांगा था जो बाबर अवान साहब ने दिया है, और फिर उसकी खिलाफ वर्जी की गई। आपको याद है? सर मैं ऑलरेडी उसका तस्करा कर चुकी हूँ कि एफिडेविट दे के उसको फिर वायलेंट हो चुका है। बिल्कुल जी। तो अब इसके बाद मजीद एफिडेविट पे कौन क्या भरोसा करेगा? दूसरी बात ये कि क्यों मतलब ये कि पीटीआई के रहनुमा खान साहब के कॉल के इंतजार करेंगे कि वो एहतजाज करेंगे? खुद भी तो बड़े उहदों पे बड़ा जमान है, जो कि एक यो सबलो फेल क़ियादत है, तो ये एक बहाने तलाश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि खुल के उसको देना चाहिए। खान साहब ने क्या कहना है, उन्हें 2-4 गालियाँ देनी है मोटे मोटे इनको, और फिर भी मैं कहता हूँ वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो जाके एहतजाज कर सके। आपको याद होगा कि पूरे 1 साल गुजर गया है, 26 नवंबर 2024 के बाद उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया है, और दावा करते 25 करोड़ आवाम के 12 करोड़ सूबे पंजाब में से। कथा कलामी की माफी, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये एक रीजन जो इसको रोकने की मुलाकातों को है वो ये कि 26 नवंबर को इन्होंने एक दफा फिर से इसी तरह की कोई प्लानिंग की थी, ये मीटिंग्स ना करवा के उसको जो है इन्होंने इंटरसेप्ट किया है, उस दोबारा एहतजाज की तरफ जो है एक दफा दोबारा कॉल देने जा रहे थे, उसका सदेबाब किया। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि तहरीक इंसाफ में अब वो दमखम नहीं रही है जो थी उसमें। आप देख रहे हैं इनके खुद लोग नहीं चाहते, इनके रहनुमा नहीं चाहते कि वो रिहा हो जाए, और उसकी वजह ये कि एक बंदा जेल में है, तो क्या जेल वाले बंदे से पूछ के आपने सब कुछ करना है या आपने अपने तौर पे कुछ करना है? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब वो दमखम नहीं है। और दोबारा मैं कहूँगा कि हुकूमत खेल रही है, हुकूमत जानबूझ के ये सस्पेंस फैला रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और भी इशू है, गरीब लोगों के इशू है, कानूनी मामलात है, लोगों के मुकदमा चलते हैं, रोजगार है, तालीम है, ये बहुत सारी चीज को जो ना हुकूमत ने एक तरफ वो देखा। माजी में आपको याद होगा जब हुकूमत क्राइसिस में होती तो क्रिकेट के टूर्नामेंट शुरू करा देते, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट पे लगा लेते हैं, तो ये उन्होंने उससे ये मुलाकात पे पूरे पाकिस्तान लगा लिए। वरना शुरू में जो आपने बात की है, मैंने आपसे इत्तेफाक की है कि एक वीडियो शेयर कर दे, सब जो है ना खत्म हो जाएगा, इंडियन चैनल समेत ये सारे, मगर हुकूमत खेल रही है, मैं ये कहूंगा, और कुछ नहीं है। अच्छा वैसा, बिफोर आई प्रोसीड टू माय क्वेश्चन, आपने कहा इसका जवाब आप देना चाहते हैं जो दानियाल साहब कह रहे थे, तो ओवर टू यू, आप बात कर लें, देन आई विल मूव ऑन। देखिए, वही कह रहा हूँ मैं कि दानियाल साहब जो है ना, वो तो एक
एक ऐसी बात के ऊपर मुसर हैं जिसकी बुनियाद कोई नहीं है। बात यह है कि एहतजाज जो है वो अलग चीज़ है बिल्कुल। एहतजाज के लिए तो बहुत सारे फैक्टर ऑलरेडी वो प्लान करके बैठे हुए हैं, सिविल सोसाइटी प्लान करके बैठी हुई है। पाकिस्तान के वकला जो हैं वो एजिटेशन कर रहे हैं। आप देखें कराची में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है और शहरों में हो रहा है। 26वीं 27वीं तरमीम के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान के आइन की हुलिया जो है उसकी हैयत बदल दी है बिल्कुल। तो ये सारी बातें एहतजाज की अपनी जगह, इसलिए इसके ऊपर तो अंडरटेकिंग की बात हो नहीं सकती है। अब सवाल ये है कि ये आप ऐड कर रहे हैं। अभी ये कह रहे थे कि जी वो शहीदों को फलां कर दिया। तो सवाल ये है कि अगर आप पास में जाएंगे, ये तो एक 9 मई का तो एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जो आपने बनाया था, वो साबित हो गया कि वो झूठा था। अगर ये साबित ना होता कि वो झूठा था तो इतना बड़ी तादाद में इमरान खान के नाम पर पीटीआई को वोट ना पड़ता। आज़ाद उम्मीदवार इतनी दुनिया में कभी इतनी तादाद में नहीं हुए होंगे जो यहाँ पे हुए, क्योंकि पार्टी बैन कर दी, आपने उनका सिंबल ले लिया। इसलिए कि लोगों ने महसूस किया कि ये सब कुछ जो है एक ड्रामा सजाया गया था, और ये सजाने वाले ये गवर्नमेंट थी जिन्होंने फौज को भी बीच में मुलव्वस किया। दूसरी बात यह है कि बार बार ये दानियाल साहब कहते हैं कि जी हमारी फौज। सवाल यह कि फौज जो है ये कोई इस हुकूमत के चंद आदमियों की फौज तो नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की फौज है। पाकिस्तान के अवाम ने अपने खून पसीना की कमाई जो है वो खर्च की है इतनी खूबसूरत फौज बनाने के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके इक्विपमेंट खरीदने के लिए, उनको अच्छा जो है प्रोफेशनल स्किल देने के लिए। तो ये इसलिए कि एक बहुत बड़े दुश्मन से हमारा वास्ता था और हम चाहते थे कि हमारी फौज ही मजबूत होगी तो पाकिस्तान महफूज रहेगा। और अल्लाह का फजल हुआ, आपने देखा मार पड़ी उनको। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, इस वक्त के जो खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी वीडियोस हम सब देख चुके हैं। मैं कोर कमांडर हाउस के पास खड़ा हूं। एक सेकंड जी। इसी तरह हसन न्याजी की हमने वीडियोस देखी हैं, आपके दूसरे लोगों की ऑडियोज आई हैं। तो ये तो कहना कि जी ऑर्केस्ट्रेट हुआ है, या आप ये कहना चाह रहे हैं इन्होंने एक ट्रैप बनाया एंड वी वॉक्ड इनटू इट? वो अभी अगर उसका लंबा कोई वक्त होगा तो मैं डिटेल बताऊंगा, या आपके पास वक्त नहीं है मैं और बताता हूं आपको। देखिए पख्तूनख्वा की बात करते हैं, अभी वहां पर जरगा हुआ, उन्होंने कितना इसी पे यही चीफ मिनिस्टर ने इलेक्ट होने के बाद हर मकतबा फिक्र से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, गवर्नर साहब को, हर एक को इकट्ठा करके एक जगह बिठा के उन्होंने एक करारदाद पास की। ये काम अगर हो सकता है तो ये मुल्क की लेवल पे भी हो सकता है, अगर एक सूबे में हो सकता है। ये इंटेंशन होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, उसकी भलाई की। हमारी इंटेंशन जो है वो हम स्कोर विनिंग के ऊपर लगे हुए हैं। सर गुजारिश, बिल्कुल कंसेंसस बिल्ड करना, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। जिरगा उन्होंने करवाया, फेयर इनफ, सारी अपनी जगह चीज़ें। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप वाकई ही नेशनल डायलॉग में और आप चाहते हैं कंसेंसस हो, तो जब वफाकी हुकूमत फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जिस वक्त ये इस पे अफगान रेफ्यूजीज वाला मामला है, एक तो उनको वापस जाना चाहिए। हम जो अभी आजकल जो टेररिज्म के इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें वही मुलव्वस पाए जाते हैं, लेकिन आपकी वहाँ पे जो हुकूमत है, बिकॉज आपकी इस वक्त पॉलिटिकल जो आपकी स्टेक्स है उनको ये सूट करता है नैरेटिव, वो कह रहे हैं जी इनको वापस नहीं जाना चाहिए। उस मीटिंग तक में वो शामिल नहीं हुए, ठीक है। हैविंग सेड दैट, और इस तरह की और जी मैं आपको एक बात बता दूं इसकी। देखिए बात जब क्राइसिस आता है ना तो उसको उसके हल करने का तरीका होता है। ये मुजाहिदीन, ये जो कह लिए ये जो आए थे महाजरीन जो वहाँ से आए अफगानिस्तान से, ये उस वक्त आए थे कि यूएनओ के शेल्टर के अंदर आए थे, उनको उनके फंड भी दिए गए थे जब यहाँ आए थे, और पाकिस्तान की कंसेंट के साथ आए थे, आ गए। अब अगर आपने उनको इतना अरसा तक नहीं निकाला तो आप और चंद दिन वेट कर लेते कि आपको ये केयर टेकर गवर्नमेंट खत्म होती और हुकूमत बन जाती, और हुकूमत से बैठ के गुफ्तगू करती। पाकिस्तान की हुकूमत अफगान हुकूमत से बैठ के तय करती कि हमने सर माजरत के साथ ये कोई एकदम से नहीं हुआ। अगर आपको याद हो पिछले 4-5 साल से कहा जा रहा है इनको वापस भेजें, और कितना टाइम चाहिए इनको, या उधर जो हुकूमत है उसको कितना टाइम चाहिए? 4 साल तो वहां से जो है वो जो अमेरिकन फोर्सेस है उनको निकले हुए भी हो गई, और कितना टाइम चाहिए इनको? मैं आपको जो बात कहने वाला हूं सुनिए। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कोई हक है, उसकी अथॉरिटी है? पहले ये बताइए कौन सा कानून कहता है उसको कि तुम पॉलिसी मेकिंग के काम करो? उसका काम नहीं था ये जो हुकूमत बन जाती है ये उसका काम था। ये झगड़ा वहां से शुरू हुआ सारा।
सर आप जो एक हकीकत को झुटाते जाएंगे कोई फायदा नहीं होगा। सर देखें, पहली तो बात ये पकड़ना है चाहिए जाके सर उनको सर 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 चले अगर आप, वैसे तो मुझे याद पड़ता है उससे पहले का ये जो है ये शुरू हुआ हुआ है। हैविंग सेड दैट, चले मैं मान लेती हूँ आपकी बात, ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे शुरू हुआ था। इस हुकूमत को आए हुए भी अब 2 साल से ऊपर हो चुका है। अब मुझे ये बताइए, 2 साल होने को हैं, आप मुझे ये बताइए कि 2 साल का वक्त भी कम है अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने के लिए? उस पे भी जो है वो इस वक्त पॉलिटिक्स करना जरूरी है कि वफाक एक चीज कह रही है तो आप ना करें। गलत तरीके से करेंगे तो प्रॉब्लम आपने खुद ही क्रिएट की है। इसमें तो पीटीआई का या इमरान खान का दखल नहीं है, ये प्रॉब्लम तो खुद क्रिएट की है आपने। एक वक्त में उनको एकदम से कहा कि निकलो, हाँ उनको इंडिया को मौका मिला। देखिए एक तरफ आपने मिडिल ईस्ट में हमारी अच्छी पॉलिसी हुई। सर माजरत के साथ आप ये देखिए कि वहां पे अमेरिका में नेशनल गार्ड पे अटैक होता है, एक दिन में पॉलिसी जो है वो बदलती है। एक दिन में यहाँ पे तो कितने अटैक्स हो चुके हैं, उन्होंने कहा जी हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जितनी वहां पे जो खुद लेके गए वो अमेरिकी खुद लेके गए, उनके बारे में भी रीविजिटिंग इट। पॉलिसी तो इसी तरह चेंज होती है। हमारे तो आए दिन इस तरह का अटैक होता है। वहां तो एक खातून जो है वो अपनी जान से गई तो वहां पे सब कुछ हिल गया। उसमें हुकूमत जो करती है, हुकूमत करती है ना, केयर टेकर सेटअप नहीं करता। केयर सर अब तो चले केयर टेकर से होता है। सर चले अब आप केयर टेकर पे अगर सारा फोकस केयर टेकर पे, जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है वो नहीं है कि अफगान शहरी जो है वो लेटेस्ट प्रॉब्लम जी। देखे ना उस वक्त कोई मुनाफिस नहीं थे, कोई पाकिस्तान पे अटैक नहीं था। वो भी अभी रिसेंट पास की बात है, उठा के निकाल के देख लें। सर आई एम सरप्राइज्ड, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। सर सारा जो फोकस जो सारा वहां से जो सपोर्ट मिलती है वो अफगानिस्तान से मिलती है, वो अफगान शहरियों को मिलती है। वहां इंडिया की वो प्रॉक्सी बना के चला रहे हैं। कितनी देर से बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? ये लैप्स है, मैं कह रहा हूं ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का लैप्स है कि हमने इंडिया को फराहम किया ये मौका कि वो अफगानिस्तान के करीब होकर कि उनकी दोस्ती हो जाए। अफगानिस्तान से तो हमारे सर गुजारिश मेरे ख्याल है कंफ्यूजिंग टू थिंग्स। मैं दानियल साहब की तरफ चलती हूँ। आप जो चीज कंफ्यूज कर रहे हैं वो टीटीए की आजकल जो मुलाकातें जो अक्टूबर से शुरू हुई, आप उसकी बात कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि जी काबुल पे पाकिस्तान ने अटैक किया, उसके बाद उनकी जो मुत्तकी साहब की विजिट है, दैट इज डिफरेंट। आई एम सेइंग पिछली कितनी देर से अफगान सॉइल जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आपके सामने है, केपी में क्या हो रहा है? दानियल साहब देखिए, आपने 2 जंगें लड़ी ना, सुने जी, आपने 2 जंगें लड़ी, 65 की जंग लड़ी, 71 की जंग लड़ी। अफगानिस्तान की तरफ से एक गोली चली आपके खिलाफ? नहीं चली। सर अफगानिस्तान ने आपको आज तक माना ही नहीं है, इंडिया को कंसिडर ही नहीं करते, आपको रेड लाइन को, आपके बॉर्डर को कंसिडर नहीं करते, आज तक वो कंसिडर नहीं करते। गोली वहां से प्रॉक्सी आपके खिलाफ जो है इस्तेमाल होती है। अफगान तालिबान खुद कहते थे कि जब ये अमेरिकी फोर्सेस चली जाएंगी, अमेरिकी फोर्सेस चली जाएंगी तब हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वो तो मुसलसल इस्तेमाल होती आ रही है। आप गोली की बात कर रहे हैं। ये उनको मौका फराहम किया कि हमारा दुश्मन जो है वो उनका दोस्त बना दिया। दानियल साहब की तरफ चलती हूँ। दानियल साहब जिस जिरगे की तरफ बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इस वक्त केपी हुकूमत जो लेवरेजिंग कर रही है वो भी नजर आता है, कॉल ऑफ फेल में बहुत तजाद नजर आता है। बट हैविंग सेड दैट, ये एक ऐसा मामला है जो कि पूरे मुल्क को जो है वो अफेक्ट करता है। जो जिरगे का जो उसमें जो रेजोल्यूशन थी उस पर जो इबादुल्लाह खान दुरानी साहब हैं, अपोजिशन लीडर हैं, उनकी भी जो है वो सिग्नेचर मौजूद है। हाउ डू यू प्रोसीड फॉरवर्ड फ्रॉम दिस? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये कोई इस तरह की चीज नहीं है कि जिससे जो बिल्कुल ये कोई नॉन इशू है, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसका एक एग्जिस्टेंशियल जो है रैमिफिकेशंस है। डॉक्टर साहब, मैं तो इनकी आज इस गुफ्तगू से हैरान हो गया और शॉक भी हो गया हूँ कि आप जो लोग आपके बच्चों को मार रहे हैं, आप दोस्त शहादतें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसका जो मैकेनिज्म था ना वो गलत था। तो मैकेनिज्म गलत था, तो इस मैकेनिज्म गलत होने की वजह से जो आपने अनाउंस किया था 2.5 गलत बात आप कर रहे हैं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। उसकी वजह से आपके बच्चों को वो मार रहे हैं, आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, आपके लोगों को मार रहे हैं और वो मैकेनिज्म गलत था। मतलब हम इनको ये मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये जमात के लोग कौन सी टेंशन के ऊपर इसको तो मतलब व्हाट डू दे स्मोक। आप फिर ये गलत बयानियां प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसे लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके हमारे लोगों के ऊपर अब हमला करते हैं, इनके सूबों में, कभी एफसी के ऊपर, कभी क्या नाम है पाकिस्तानी सियासतदानों के ऊपर, कभी वहाँ की आवाम के ऊपर, कभी मदरसों के ऊपर, कभी स्कूलों के ऊपर, कभी वो एपीएस हमला हो, कभी हमारे बच्चों की क्या बातें कर रहे हैं। एपीएस चेन क्या भूल गए हैं? क्या वो हमले भूल गए हैं? हमने ये नैरेटिव जो था ये तो 4 साल से चल रहा है कि इनको घर भेजना चाहिए, और फिर फाइनली पिछले 2 महीने पहले ये फाइनल क्या कि नाफिज है ना
तो वो आपने 2 महीने पहले इसको सीरियस लेकर इनको घर भेजने शुरू किया, तो उसके ऊपर आप कहेंगे कि जो 4 साल पहले नैरेटिव बनाया गया था उसमें आपने उन खुद के हमला आवर और दहशतगर्दों को ऑन बोर्ड नहीं लिया था, तो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया था, तो इसलिए वो नैरेटिव जो है वो इंडिया की मीडिया और अफगानिस्तान के लोग जो है प्रोपेगेट कर रहे हैं। ये इनको शायद पता नहीं है कि ये जो हमने उनको जर्मनी में 1700 लोग गए थे तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, चीखें निकल गई। अमेरिका में आपके 1200 गए, हमने 4 मिलियन लोग को फॉर ओवर 4 डेकेड हमने भाइयों की तरह अपनी जान माल सब कुछ दिया, उनसे शेयर किया। फॉर व्हाट? That one bad policy and you will start bombarding. क्यों नहीं निकाला उनको? देखिए ना, ये हमारी पॉलिसी के लैप्स है ना, क्यों नहीं निकाला उनको? आप हमारे जो इसलिए कि वहाँ गुर्बत है, वहाँ बेरोजगारी है, वहाँ के लोग जो हैं इंडिया की इन्फिल्ट्रेशन के साथ पैसे और डॉलर के अलावा किसी जुबान को नहीं समझते। वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के बच्चों की जान की कीमत लेते हैं। वो पाकिस्तान के जो हमारे वे फॉरवर्ड क्या है दानिया साहब? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? लेते हैं और इस पे क्या वे फॉरवर्ड है? मतलब देयर विल बी नो टॉलरेंस ऑन इट। जो अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है उसके ऊपर देयर विल बी नो टॉलरेंस। और ये खाली मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कह रही है और पूरी दुनिया इसको अफगानी, जहाँ तक आम अफगान शहरी है वो हमारे भाई हैं, वो हमारे कल भी भाई थे, आज भी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और इस मसलों में हम उनको मदद करना चाहते हैं जिससे हमने पहले की। हमारे पास अपनी गंदम कम होती थी तो हम उनको भिजवाते थे, हमारे पास अपनी चीनी चले कम होती थी तो हम उनको सस्ते दामों पे भिजवाते थे। हम आगे भी भिजवाएंगे। मैं जरा कादर साहब का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। मंदोखेल साहब, अगेन बिकॉज आप बात हमेशा जो है वो मुफाहमत की करते हैं, एक मसला है जो कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है इस मुल्क के लिए, दोनों साइडें जो हैं उनकी अपनी डाइवर्जेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। आप क्या समझते हैं वे फॉरवर्ड क्या है, स्पेशली ये जो ये ऑपरेशन के हवाले से जो एक क्राइसिस बना हुआ है, किस तरह जो है ये चीज रिजॉल्व हो सकती है? अपोजिशन की बात कर रही हो आप, अफगानिस्तान की बात कर रही हो? मैं बात कर रही हूँ जिस वक्त ऑपरेशन का मसला बना हुआ है, जो सिक्योरिटी का एक इशू बना हुआ है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। जी देखिए, एक तो बात ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अफगानिस्तान एक 1.5 करोड़ आबादी का मुल्क है और मुझे आजकल का डेटा नहीं पता, माजी में वहां पे हिंदुस्तान के 17 कॉन्सुलेट काम करते थे और पाकिस्तान जो कि पड़ोसी मुल्क होने के बावजूद हमारे 4 कॉन्सुलेट थे। अहमद ओवैस साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमने जो रिश्ता जोड़ना था अफगान हुकूमत से हमने नहीं जोड़ा। वहां पे जो हिंदुस्तान काम कर रही थी, तरक्याती काम, अस्पताल, स्कूल, ये सारी चीजें, वो हमने वहां पे कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है और बल्कि वहां हमने बॉर्डर खोल दिए और लाखों लोगों को पाकिस्तान आने दिए और अपना भी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसके बाद जाके हम वो ये कहेंगे कि बाबा आप ये कर दे और फिर हिंदुस्तान जो वहां पे काम कर रहे हैं, उस सारी बातें, हिंदुस्तान का तो एक ही गर्ज है, उनको अफगान अवाम से कोई हमदर्दी नहीं है, ना उनका दीन मिलता है, ना उनका जबान मिलता है, ना उनका मजहब मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, मगर वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के अलावा और उनका कोई एम वहां पे नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऑपरेशन जरूर बिल्कुल, जो आज भी DGISPR का प्रेस रिलीज था कि 67,000 समथिंग जो है ना वो ऑपरेशन जो है ना वो ऑपरेशन कर चुके हैं टारगेटेड। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन सारी चीजों के साथ साथ यकीनन 67,000 में अगर 67,000 में एक ऑपरेशन में एक बंदा भी मारा जाए तो 67,000 तो गए, लेकिन इतने लोग पैदा कहाँ से हो रहे हैं, इतने लोग आते कहाँ से, इतने लोगों को यहाँ पे कौन बनाते हैं? रिविजिट होनी चाहिए और इस पर जो है इस पे कोई कंसेंसस जो है वो होना चाहिए। आई एम सॉरी मंदोखेल साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। दानियल साहब बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में वक्त आपने दिया। मंदोखेल साहब आपका एंड अहमद ओवैस साहब, थैंक्स फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। लेकिन आखिर में यही कहेंगे कि कुछ तो बीच में जो है, कुछ जो है वो दोनों पार्टीज़ को जो है वो आपस में कोई कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा, टेम्परेचर्स नीचे लाने पड़ेंगे, कुछ CBMs दोनों तरफ से जो है वो दरकार है ताकि जो एक ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है इससे लड़ा जा सके, इससे भी जो है वो निपटा जा सके। On that note, we'll close today's program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त